نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشہ عرفان۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں باٹا پور کے علاقے میں سی سی ڈی کا مبینہ پولیس مقابلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم اپنے ساتھی کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم اپنے ساتھی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ سی سی ڈی ٹیم نے رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی۔ ہلاک ملزم کی لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا ہے۔ افسوسناک خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں، باٹا پور کے علاقے میں سی سی ڈی کا مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم اپنے ساتھی کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم اپنے ساتھی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ سی سی ڈی ٹیم نے رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی۔ ہلاک ملزم کی لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، باٹا پور کے علاقے میں سی سی ڈی کا مبینہ پولیس مقابلہ۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم اپنے ساتھی کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم اپنے ساتھی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ سی سی ڈی ٹیم نے رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی۔ ہلاک ملزم کی لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے اور فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم اپنے ساتھی کی گولی لگنے سے ہلاک ہوا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم اپنے ساتھی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ سی سی ڈی ٹیم نے رکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی۔ ہلاک ملزم کی لاش کو مردہ خانے بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں، باٹا پور کے علاقے میں سی سی ڈی کا مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم اپنے ساتھی کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ شہر کی سڑکوں کو ایک لیول پر لانے کے لیے کیے گئے ٹیپا کے سروے میں چشم کشا انکشافات ہوئے ہیں۔ غیر یکساں روڈ لیول، ناکام ڈرین سسٹم اور گڑھوں کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے سڑکوں کے لیول سے متعلق سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی ہے۔ پنجاب حکومت نے ٹیپا کو شہر میں روڈ لیول، گرین بیلٹس اور بلڈنگ پلیت لیول کا تفصیلی جائزہ لینے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ شہر لاہور کی سڑکوں کا لیول یکساں کرنے، پلنتھ لیول کو ایک ہی مقام پر لانے کے لیے محکمہ ہاؤسنگ کی طرف سے یہ ذمہ داری ٹیپا کو تفویض کی گئی کہ تمام لاہور کی سڑکوں کا لیول ایک ہی مقام پر لایا جائے تاکہ جو مسائل ہیں وہ پیدا نہ ہوں۔ تو محکمہ ہاؤسنگ کے احکامات پر جب ٹیپا کی طرف سے سروے کیا گیا تو اس میں چشم کشا انکشافات آئے کہ لاہور میں کسی بھی ادارے کی طرف سے کبھی بھی سڑک کو تعمیر کرنے میں جو لیول ہے اس کو ملحوظ خاطر ہی نہیں رکھا گیا۔ تو اب یہ جو ایک تفصیلی سروے کیا گیا ہے اس کی سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے اور جو سمری کی کاپی لاہور نیوز کو موصول ہوئی ہے اس میں سڑکوں کے لیول کے حوالے سے مسائل اور ان کو حل کرنے کی جو تجاویز ہیں وہ دی گئی ہیں۔ جو مسائل بتائے گئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لاہور میں اس وقت کوئی بھی ایسی اتھارٹی موجود نہیں ہے جو کہ اس بات کو چیک کرے کہ کون سا ادارہ کس لیول پر سڑک بنا رہا ہے تاکہ سڑکوں کا لیول یکساں کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ سڑکوں کا لیول یکساں نہ ہونے کی وجہ سے بارشی پانی کے نکاس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مختلف مقامات پر سڑکوں کا لیول ایک طرح کا نہ ہونے کی وجہ سے بارشی پانی جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سڑکیں بھی خراب ہوتی ہیں اور جو بارشی پانی کا نکاس ہے وہ بروقت نہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک روانی متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سڑکوں کا لیول یکساں نہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ واسا کی طرف سے بغیر کسی اجازت کے سڑکوں پر گڑھے کھود دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جب مرمت کا کام کیا جاتا ہے تو کسی بھی جو روڈ انفراسٹرکچر کا ادارہ ہے اس کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، جس کی وجہ سے جو سڑک ہے وہ ان ایون تعمیر کر دی جاتی ہے جس سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری روڈ کٹ اور جو سیوریج کا گندا پانی سڑکوں پر جمع ہو جانا بھی جو سڑکوں کا لیول ہے اس کے لیے ایک مسائل پیدا کر رہا ہے۔ یہ سمری میں مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب جو اس کے حل وزیر اعلیٰ پنجاب کو بتائے گئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو روڈ لیول کے لیے ایک رولز بنائے جائیں جس کی منظوری پنجاب کابینہ کی طرف سے دی جائے اور اس کے بعد لاہور سمیت پنجاب بھر میں ان رولز کو نافذ العمل کیا جائے اور ٹیپا کو ذمہ دار ادارہ قرار دیا جائے کہ ٹیپا کے پاس ہی روڈ لیول کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے علاوہ تمام سڑکیں بنانے سے قبل
टीपा से NOC लेना जो लाजम है वो करार देने के हवाले से जो समरी में तजवीज़ है वो दी गई है और ये सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई हैं। जैसे ही वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इस अमर की मंजूरी दे दी जाएगी तो उसके बाद लाहौर समेत पंजाब भर में सड़कों का लेवल एक ही सतह पर लाने के जो रूल्स हैं उनको भी नाफज कर दिया जाएगा और जो सड़कें ऊंची हैं उनको नीचे करने के लिए भी काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। महकमा प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट का रास्त इक़दाम सूबा भर के गोदामों में मौजूद गंदम ज़खायर की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन और जियो टैगिंग का पहली बार आगाज़। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद की हिदायत पर 4 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डिप्टी सेक्रेटरी डेवलपमेंट एंड बजट शीज़ा रहमान मॉनिटरिंग कमेटी की सरबराही करेंगी। कमेटी पंजाब के तमाम अजला में पीरा फोर्स और फूड डायरेक्टोरेट के इश्तराक से डाटा इकट्ठा करेगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। देखिए, इस पर फिजिकल वेरिफिकेशन का मामला है और सुबह भर के गोदामों में मौजूद गंदम ज़खायर की फिजिकल वेरिफिकेशन और जियो टैगिंग का पहली बार आगाज किया गया है। महकमा प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज की तरफ से डिप्टी सेक्रेटरी डेवलपमेंट एंड बजट शीज़ा रहमान मॉनिटरिंग कमेटी की सरबराही करेंगी, जबकि सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद की हिदायत पर 4 रुकनी मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील देकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मॉनिटरिंग कमेटी पंजाब के तमाम जिला में पेरा फोर्स और फूड डायरेक्टोरेट के इश्तराक से डाटा इकट्ठा करेगी, जबकि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग विंग ने भी काम शुरू करने का आगाज कर दिया। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात का हतमी शेड्यूल जारी। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात 1 नवंबर को होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 16 अक्टूबर को जारी होगी। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 17 नवंबर को पंजाब बार कौंसिल का हतमी रिजल्ट जारी किया जाएगा। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चले, पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात का हतमी शेड्यूल जारी। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात 1 नवंबर को होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 16 अक्टूबर को जारी होगी। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। महकमा स्कूल एजुकेशन का मैट्रिक रिजल्ट ठीक न आने पर एक्शन मेरिट पर तैनात हेडमास्टर्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। कम रिजल्ट देने वाले हेडमास्टर्स का रिकॉर्ड मांग लिया गया है। मुतल्लिका असातिज़ा के सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट की तफसीलात फराहम करने की हिदायत भी की गई हैं। तमाम अजला के COs को कल शाम 4 बजे तक रिपोर्ट ईमेल करने के लिए भी कहा गया है। आपको एक दफ़ा फिर से अपडेट करते चलें, महकमा स्कूल एजुकेशन का मैट्रिक रिजल्ट ठीक न आने पर एक्शन मेरिट पर तैनात हेडमास्टर्स की तफसीलात तलब कर ली हैं। कम रिजल्ट देने वाले हेडमास्टर्स का रिकॉर्ड मांग लिया गया है। मुतल्लिका असातिज़ा के सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट की तफसीलात फराहम करने की हिदायत भी की गई हैं। तमाम अजला के COs को कल शाम 4 बजे तक रिपोर्ट ईमेल के ज़रिए भिजवाने का हुक्म भी दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइएगा। ये जो भी जबरदस्ती जमात के जो बाईस है, इस पर खराब रिजल्ट देने वाले टीचर और स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है और महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मरासला जो है तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को भिजवा दिया गया, जिसकी नामिया के महल तैनात हेडमास्टर की तफसीलात भिजवाई स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जिला के COs से कम रिजल्ट देने वाले हेडमास्टर्स का रिकॉर्ड मांगा गया। मुतल्लिका टीचर के सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट की तफसीलात भी फराहम की जाए। तमाम अजला को कल शाम 4 बजे तक रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दिया गया है। लाहौर के साथ साथ तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को ये हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि जिन असातिज़ा और स्कूल सरबराहान के खिलाफ नतज के कार्रवाई अमल में ली जाएगी और इब्तदाई मरहले में डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि जिन असातिज़ा और स्कूल सरबराहान ने बोर्ड से कम शरह के नीचे रिजल्ट दिए हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनके शोका किया जाएगा। सीधा के तहत कार्रवाई की जाएगी और सजा दी जाएगी। आतिफ बहुत शुक्रिया। ज़िला इंतज़ामिया का गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब भर में 4,86,455 मकामात की चेकिंग की गई है। 12,043 गिरां फरोशों को जुर्माने आयद किए गए हैं। 107 गिरफ्तार 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। चिकन और मीट शॉप की चेकिंग 1,911 अफराद को जुर्माने आयद किए गए हैं। 16 गिरफ्तार करवाए गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। इमरान से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया का गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब भर में 4,86,455 मकामात की चेकिंग की गई है। इमरान से राबिता बहाल हुआ है। मज़ीद उनसे जानते हैं। इमरान बताइएगा।
دیکھیے وزیر پنجاب کی ہدایت پر کریک ڈاؤن جاری ہے. اس والے سے 24 گھنٹوں میں پنجاب بھر میں 4,86,455 مقامات کی چیکنگ کی گئی ہے. 12,048 گرافتوشوں کو جرمانے عائد کیے گئے ہیں. 107 گرفتار کیے گئے ہیں. 7 مقدمات درج کروائے گئے ہیں. آٹے کے نرخوں پر گرافتوشی پر 1,074 افراد کو جرمانہ عائد کیا گیا ہے. 18 گرفتار کیے گئے ہیں. 4 کے مقدمات درج کروایا گیا ہے. چکن اور میٹ شاپس کی چیکنگ کی گئی جبکہ 1,911 افراد کو جرمانے عائد کیے گئے. 16 گرفتار کروائے گئے. روٹی کی قیمت پر گرافتوشی پر 576 افراد کو جرمانے عائد کیے گئے. 13 کو گرفتار کروایا گیا. محکمہ پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز کے مطابق مہنگی چینی فروخت کرنے پر 952 افراد کو جرمانے عائد کیے گئے. 13 گرفتار کیے گئے. جہاں فروشوں اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. اشیاء ضروری ہے کہ مقرر کردہ نرخوں پر فروخت پر ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ. پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال نارمل ہے. پانی کے بہاؤ میں نمایاں کمی. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,04,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. دریائے ستلج سلیمان کی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 81,000 کیوسک ہے. دریائے راوی جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 8,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. مزید جان لیتے ہیں سہیل کیسر سے. سہیل بتائیے گا. دیکھیں پنجاب میں شدید جو بدترین تباہی پھیلائی تینوں دریاؤں راوی ستلج اور چناب نے، اور اب اس کے بعد یہ بہت پرسکون سے نظر آ گئے ہیں، پرسکون ہو گئے ہیں. اگرچہ ان کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی متعدد علاقوں میں، وہاں زندگی ابھی بے شمار مشکلات کا شکار ہے. البتہ یہ ضرور بتایا گیا ہے جی کہ اب جن علاقوں میں سیلاب کا پانی بڑی مقدار میں جمع تھا وہاں پر بھی پانی میں کمی واقع ہو رہی ہے اور صورتحال میں بتدریج بہتری آ رہی ہے. اور اگر دریاؤں کے بہاؤ کی بات کی جائے تو اس وقت سب سے زیادہ پانی کا بہاؤ دریائے ستلج میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے. گنڈا سنگھ والا کے مقام پر جو 1,04,000 کیوسک ہے. اور دریائے ستلج میں ہی جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو سلیمان کی ہیڈ ورکس آتا ہے جہاں پر پانی کا بہاؤ 81,000 کیوسک ریکارڈ کیا جا رہا ہے. دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر پانی کی آمد 42,000 کیوسک ہے. خانہ کی ہیڈ ورکس پر 44,000 کیوسک اور قادر آباد کے مقام پر 37,000 کیوسک ہے. پنجاب کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,33,000 تک نیچے آ گیا ہے. راوی کی بات کریں تو جسڑ پر بالکل معمول سے بھی سمجھنے کے کافی کام کے 8,000 کیوسک پانی چل رہا ہے. اور شادرہ کے مقام پر صرف 9,000 پانی کا بہاؤ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. البتہ بلو کی ہیڈ ورکس پر زیادہ ہے، 31,000 کیوسک ہے. اور دریائے راوی کے ہی ہیڈ سدنائی پر جو بالکل آخری ہیڈ ہے دریائے راوی پر، وہاں پر پانی کا بہاؤ 29,000 کیوسک ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور پی ڈی ایم اے کی طرف سے بتایا گیا ہے جی کہ جیسے جیسے پانی دریاؤں میں کم ہو رہا ہے تو ویسے ویسے جو جن علاقوں میں یہ پانی کھڑا تھا وہاں بھی پانی اتر رہا ہے. اور جیسے جیسے صورتحال بہتر ہو رہی تو ویسے ویسے امدادی کارروائیوں میں بھی تیزی لائی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے سہیل، بہت شکریہ. وفاقی وزیر احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. براہ راست لیے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیرونی محاذ پر کامیابیوں سے نوازنا شروع کر دیا ہے. کسی بھی ملک کے لیے دفاع کی کامیابی اس وقت تک دیر پا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایک مضبوط معیشت پہ نہ کھڑی ہو. مارکہ حق کی کامیابی کے بعد ہمیں اب 2 اور مارکے جیتنے ہیں. ایک مارکہ ترقی اور دوسرا مارکہ انوویشن. چونکہ مستقبل کا دور انوویشن کا دور ہے، مستقبل کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور مستقبل میں جس ملک کی مضبوط معیشت نہیں ہوگی وہ بھی لانگ ریس نہیں کر سکتا، میراتھن ریس نہیں کر سکتا. آپ 100 میٹر کی ریس جیت سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 10,000 میٹر کی ریس جیتنی ہے تو اس کے لیے سٹیمنا چاہیے، اور وہ سٹیمنا کسی ملک کی معیشت ہوتی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو اڑان پاکستان کا منصوبہ شروع کیا ہے، اس کی بنیادی کامیابی کا انحصار انجینئرز کے تعاون اور کردار کے اوپر ہے. اگر ہم پاکستان کی برآمدات کو دیکھیں تو پاکستان کی برآمداتی صلاحیت تبھی بڑھے گی جب ہماری پیداواری صلاحیت میں جدت آئے گی، جب ہم اپنی صنعتی صلاحیت میں بڑھوتری لائیں گے،
जब हम टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर अपनी मसनूआत को आलमी मेयार के ऊपर लेकर जाएंगे, और ये सब काम इंजीनियर्स ने करना है। और इसी तरह एक मजबूत बरामदाती मईशत के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो भी इंजीनियर्स ने तामीर करना है। अगर हम ई पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को एक टेक्नोलॉजी पे मबनी मईशत अगर बनाना है तो उसमें भी इंजीनियर्स का बुनियादी किरदार है। कल रात यहाँ लाहौर ही में पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन की सालाना तकरीब थी, और उसमें ये देखकर बेहद खुशी हुई कि पाकिस्तान के टेक एंटरप्रेन्योर्स अब सिर्फ दुनिया के लिए सस्ता काम नहीं कर रहे, बल्कि वो ख़ुद अपनी मसनूआत बनाकर दुनिया में पाकिस्तान का ब्रांड बन रहे हैं। और यही वो रास्ता है कि जिससे हम अपने तरक्की के सफ़र को तेज़ी से आगे लेकर जा सकते हैं। लिहाजा इंजीनियर्स का टेक्नोलॉजी पे मबनी मईशत बनाने में भी अहम किरदार है। अगर हम मौसमियाती तब्दीली जिसका हाल ही में हम सामना कर रहे हैं, और अब ये मुस्तकबिल में नया नॉर्मल है, हमें इसका मुस्तकिल बुनियादों पे सामना करना पड़ेगा, तो इसकी पेशबंदी के अंदर भी चाहे हम वाटर सिक्योरिटी को देखें या फूड सिक्योरिटी को देखें, दोनों में इंजीनियर्स का कलीदी किरदार है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस है, ये हमारी कौमी टास्क फोर्स जो वज़ीर आज़म ने कायम की है, जिसने मुल्क के अंदर क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, इसमें हमारी पूरी मुआवनत करेंगे। हम क्लाइमेट चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन इसका सिर्फ एक ही रास्ता है सामना करने का कि हम अपने अंदर अपनी मईशत में रेजिलियंस पैदा करें, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एडेप्टेबल करें, और हम बिल्ड बैक बेटर करें कि हम जो तामीरें नौ करें वो ऐसी हो कि दोबारा मौसमियाती तब्दीली का शिकार ना हो जाए। तो ये करने के लिए हमें यकीनन इंजीनियर्स का ताउन चाहिए होगा, और हमें मुस्तकबिल में जो हाइड्रोलिक स्टडीज़ करनी है कि पाकिस्तान के वाटर फ्लोज़ कैसे चलते हैं, हम सैलाबों से कैसे बच सकते हैं। बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है कि हर साल वो सैलाब के नतीजे में तबाही का शिकार हुआ करते थे। सैलाब आने बंद नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एडेप्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से सैलाबों की जो नुकसानात हैं उनको काफ़ी हद तक कम कर दिया है। इसी तरह अगर हम ई एनर्जी की बात करें तो पाकिस्तान में आज तवानाई का एक बड़ा चैलेंज है, चूँकि हमारी लागत बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह सर्कुलर डेट भी है, उसकी वजह इनएफिशिएंसीज़ भी हैं, लीकेजेस भी हैं हमारे निज़ाम के अंदर। लिहाजा ये पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर अगर हमने दुरुस्त करना है तो इसकी कुंजी किसी ब्यूरोक्रेट के पास नहीं है, इसकी कुंजी पाकिस्तान के इंजीनियर्स के पास है। और पाकिस्तान के इंजीनियर्स ही का फ़र्ज़ है कि वो इस वक्त मुल्क को एक जारी रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को के 67 मुतासरा फीडर्स में से 66 मुकम्मल और एक जुज़वी तौर पर बहाल। लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा और ओकाड़ा में बिजली की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। फेस्को के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 28 ग्रिड्स और 81 फीडर्स मुतासर हुए। मुतासरा फीडर्स में 54 मुकम्मल और 27 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़हद अमीन से। जी फ़हद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब के बाइस बिजली का तरतीली निज़ाम भी पूरी तरह मुतासर हुआ था। ताहम पावर डिवीजन की जानिब से सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली बहाली पर जो है वो आज तक की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को के कुल 67 फीडर जो हैं वो सैलाब के बाइस मुतासर हुए थे, जिनमें से 66 मुकम्मल तौर पर, एक जुज़वी तौर पर जो है वो बहाल कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को के 441 मुतासरा सार्फिन के लिए बिजली बहाली का काम जो है वो 21 सितंबर तक मुकम्मल करने की जो है वो हिदायत की गई है।
लेस्को के जेर इंतजाम इलाके लाहौर, ननकाना, शेखपुरा और ओकाड़ा में बिजली की मुकम्मल तौर पर बहाली कर दी गई है। हम कसूर का एक फीडर है जिसे 21 दिसंबर तक जो है वो बहाल किया जाएगा। लेस्को के जेर इंतजाम इलाके में 28 ग्रिड और 81 फीडर जो है वो इस तलाश के बायस मुतासर हुए थे। मुतासरा फीडर में से 54 मुकम्मल और 27 को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। टेस्को के 34,698 जो सार्फिन हैं वो अभी तक मुतासर है और उनके लिए बिजली की बहाली का काम 20 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। इस तरह मैप्को के 181 मुतासरा फीडर में से 21 मुकम्मल और 153 जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। मैप्को के जेर इंतजाम इलाकों में पानी कम से ही जो है वो मुतासरा फीडर की मुकम्मल बहाली पर काम किया जाएगा। गैपको के 11 ग्रेड और 103 फीडर जो है वो सैलाब के बायस मुतासर हुए थे। मुतासरा फीडर में से 101 फीडर मुकम्मल और 2 जुज़वी तौर पर बहाल हो चुके हैं। गैपको के 204 मुतासरा सार्फिन के लिए बिजली बहाली का काम सैलाब का मुकम्मल करने के बाद किया जाएगा। इसी तरह पैसो के 88 फीडर मुकम्मल और 3 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। पैसो के जेर इंतजाम इलाके सवाद, सवाबी और डीए खान में बिजली की बहाली का काम मुकम्मल कर दिया गया है। टेस्को के इलाके शमाली वजीरिस्तान और खैबर के जो है वो 17 फीडर मुतासर हुए थे। लेस्को के 17 फीडर मुकम्मल और 1 फीडर जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। टेस्को के 296 मुतासरा सार्फिन के लिए बिजली की बहाली का काम 20 सितंबर तक जो है वो आज तक मुकम्मल होना मुतवक्किल है। इसी तरह टेस्को के इलाके खैबर में बिजली की बहाली का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इसी तरह सैको के जेर इंतजाम इलाके के 35 मुतासरा फीडर आर्मी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। मजमूई तौर पर 51 ग्रेड और 589 फीडर जो है वो मुतासर हुए थे। मजमूई तौर पर 350 फीडर मुकम्मल और 222 बिजली तौर पर बहाल किए गए हैं। फहद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मॉनसून और मगरबी हवाओं के बाइस बारिशें बरसाने वाला निज़ाम पंजाब से मुकम्मल तौर पर निकल गया है। महकमा मौसमियात की आइंदा 10 से 12 दिनों तक मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई, दर्जा हरारत में भी इजाफा होगा। मौसम के हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से, जो कि डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ के साथ मौजूद हैं। सुहेल, अपडेट कीजिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया सर। मुझे बताइएगा कि अब मज़ीद बारिशों का कोई इम्कान है? आज से अगर हम आज की बात करें तो आज से मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम जो है वो खुश्क हो गया है और ये खुश्क मौसम जो है ये इस माह के एंड तक बरकरार रहेगा। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो है वो मुल्क के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सपेक्टेड है। जबकि हम सदर्न पार्ट्स की बात करें, साउथ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की, तो वहाँ 40 प्लस टेम्परेचर हो सकते हैं। अच्छा अजीज़ साहब, ये जो इतने टेम्परेचर 39-40 तक आपने बताया, ये कब तक रह सकते हैं और फिर इसमें कब से तब्दीली आना शुरू हो सकती है? ये जो टेम्परेचर हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक या इससे ऊपर, ये तो सिंध और बलूचिस्तान के पार्ट्स में मिड अक्टूबर तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम पंजाब और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री की बात करें तो उसमें जो टेम्परेचर हैं ये इस माह के एंड तक, यानी सितंबर के एंड तक 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। सो ये सूरत हाल जी के अब टेम्परेचर आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक ये राइज़ करते रहेंगे और उसके बाद मतलब 10-12 दिनों तक तो बारिश का मज़ीद कोई इम्कान नहीं है और फिर ज़ाहिर है उसके बाद थोड़ी इस मौसम में तब्दीली का अमल भी शुरू हो जाएगा। जी सुहेल कैसर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें। डीजी फूड अथॉरिटी की वज़ीर आला मरियम नवाज़ को महकमाना कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। इमसाल 9,33,700 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग की गई। 1,526 मुकदमात दर्ज करवाए गए। 2,691 यूनिट इस्लाह तक बंद। 89,495 को 1 अरब 18 करोड़ 88 लाख 53,000 के जुर्माने आयद किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की डीजी फूड अथॉरिटी को ग़िज़ाई दहशत गर्दों के लिए पंजाब की ज़मीन तंग करने की हिदायत। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि डीजी फूड अथॉरिटी की वज़ीर आला मरियम नवाज़ को महकमाना कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। इमसाल 9,33,700 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग की गई। 1,526 मुकदमात दर्ज करवाए गए। 2,691 यूनिट्स इस्लाह तक बंद। 89,495 को 1 अरब 18 करोड़ 88 लाख 53,000 के जुर्माने आयद किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की डीजी फूड अथॉरिटी को ग़िज़ाई दहशत गर्दों के लिए पंजाब की ज़मीन तंग करने की हिदायत भी सामने आई है।
इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की डीजी फूड अथॉरिटी को ग़िज़ाई दहशतगर्दों के लिए पंजाब की ज़मीन तंग करने की हिदायत जारी की गई हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? आपको बता रहे हैं कि डीजी फूड अथॉरिटी की वज़ीर आला मरियम नवाज़ को महकमाना कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। इमसाल 9,33,700 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग की गई। 1,526 मुकदमा दर्ज करवाए गए। 2,691 यूनिट इस्लाह तक बंद। तदरीस से कन्नी कतराने वाले असातिज़ा के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने फारिग रहने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। हज़ारों असातिज़ा ने मुतादिद बार हिदायत के बावजूद पोस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं किया था। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पोस्टिंग के लिए अप्लाई न करने वालों का एजुकेशन अथॉरिटीज़ से रिकॉर्ड मांग लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तदरीस से कन्नी कतराने वाले असातिज़ा के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन के बहुत सारे टीचर जो हैं वो सरप्लस हैं और महकमा स्कूल एजुकेशन के डिस्पोजल पर मौजूद हैं। इनको हदायत की गई थी कि ये अपनी एडजस्टमेंट करवाएं, पोस्टिंग लें, लेकिन असातिज़ा ने ये फैसला कर लिया कि उन्होंने कोई काम नहीं करना, जिस पर अब महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो कार्रवाई का फैसला किया गया है। इस हवाले से तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा तलब किया गया, जिसमें कहा गया है कि ऐसे खासा का रिकॉर्ड जो है जिनको मुताबिक पर हदायत की गई और उन्होंने हदायत के बावजूद कोई पोस्टिंग नहीं ली, कोई एडजस्टमेंट नहीं करवाई, इनके खिलाफ 2 रोज में डाटा तलब करके पीडा के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये तदरीस से जान छुड़ाने वाले असातिज़ा हैं जिनको मुताबिक पर कहा गया है कि वो जो ट्रांसफर के हवाले से मुताबिक राउंड आए हैं उसमें वो अप्लाई करें, उनको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन वो अपनी मर्जी की पोस्टिंग लेना चाहते हैं और पोस्टिंग न मिलने पर वो काम करने के लिए तैयार नहीं और मुसलसल महकमा स्कूल एजुकेशन के डिस्पोजल पर मौजूद थे। अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने हतमी तौर पर फैसला कर लिया है कि इन असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के ICU वार्ड में ऑक्सीजन लीकेज का इंकिशाफ। अस्पताल इंतजामिया ने 3 मुलाजमीन पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सिद्दीक, शराज और यासीन को हिरासत में ले लिया। FIR के मुताबिक तीनों मुलाजमीन लीकेज रोकने की कोशिश के बाद किसी को इत्तला दिए बगैर छुट्टी करके चले गए। PINS के ICU वार्ड में ऑक्सीजन की लीकेज पाई गई। MS की बरवक्त इत्तला पर इंतजामिया ने लीकेज बंद की है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के अमले की गफलत का ये मामला है, जिससे अमले की गफलत से इंसानी जानें दांव पर लग गई और इस हवाले से अस्पताल इंतजामिया ने 3 मुलाजिम पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस से तीनों मुलाजिम को हिरासत में भी ले लिया गया है। FIR की मतन के मुताबिक PINS के ICU वार्ड में ऑक्सीजन की लीकेज पाई गई। तीनों मुलाजिम ऑक्सीजन लीकेज रोकने की कोशिश करते रहे, ऑक्सीजन लीकेज ना रुकी और छुट्टी का वक्त हो गया। तीनों मुलाजिम किसी को बताए बगैर छुट्टी करके चल गए। अस्पताल इंतजामिया की दरख्वास्त सिद्दीक, शराज और यासीन पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया गया है। ICU में मरीजों का जब सांस रुकने लगा तो MSPINS ने MS जनरल अस्पताल को इतला दी। इंतजामिया ने फौरी एक्शन करते हुए लीकेज बंद की। जनरल अस्पताल इंतजामिया ने मुकदमे के इंदराज के बावजूद ताहाल महकमाना इंक्वायरी तीनों अफराद के खिलाफ नहीं की अभी तक। जी बिलाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम बारे इजलास। सीवरेज के जदीद लाइनिंग पाइप के मैन्युफैक्चरर्स की इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि वज़ीर आला ने 200 शहरों में म्यूनसिपल स्कीमों का हुक्म दिया है। पहले मरहले में 52 शहरों में सीवरेज और वाटर टैंक बनाए जाएंगे। कच्ची गलियों को पुख्ता किया जाएगा और स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम बारे इजलास हुआ। सीवरेज के जदीद लाइनिंग पाइप के मैन्युफैक्चरर्स के इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर बल्दियात ने कहा वज़ीर आला ने 200 शहरों में म्यूनसिपल स्कीमों का हुक्म दिया है। CCD मॉडल टाउन का मुबैना मुकाबला। वहदत कॉलोनी में कमसिन बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम अपनी गोली लगने से जख्मी। मुलजिम वकार की गिरफ्तारी के लिए काहना में छापा मारा गया। मुलजिम ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की तो गोली चल गई। पेट के निचले हिस्से के करीब गोली लगने से मुलजिम जख्मी हो गया। मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन, अपडेट कीजिएगा।
میں کمسل بچی کو ہراساں کرنے والا ملزم جو ہے وہ اپنی فائرنگ سے زخمی ہو گیا ہے. بچی کو جنسی ہراساں کرنے والے ملزم کو گولی لگ گئی ہے. ملزم کی شناخت وقار کے نام سے ہوئی ہے اور قصور کا رہائشی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. سٹی مرڈر ہونے گرفتاری کے لیے کانا میں چھاپا مارا. ملزم نے پستول نکالنے کی کوشش کی تاکہ وہ پولیس پر فائرنگ کر سکے، لیکن ان کی جو ہے وہ گولی چل گئی اور پیٹ کے نچلے حصے کے قریب گولی لگنے سے ملزم جو ہے وہ شدید زخمی ہو گیا. زخمی حالت میں ملزم کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں اس کی حالت جو ہے وہ نازک بتائی جا رہی ہے. اس وجہ سے پولیس سے کہنا ہے کہ ملزم نے مکمسن بچی کو ہراساں کیا تھا اور اس کو پکڑنے کے لیے چھاپا مارا تھا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ملزم اپنی گولی سے زخمی ہوا ہے. جی، ملزم اپنی ہی گولی سے زخمی ہوا ہے. مدثر حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ.